We must be useful to God. A true Christian cannot remain quiet. He has to move forward to enlighten the society with evangelism. The good news is the sole remedy for societal reformation. If we want to see a sin-free, crime-free society, people must fear God. That starts with evangelism. भगवान के लिए उपयोगी बने। एक सच्चा ईसाई चुप नहीं रह सकता। उसे सुसमाचार प्रचार के साथ समाज को आलोकित करने के लिए आगे बढ़ना है। अच्छी खबर समाज सुधार का एकमात्र उपाय है। यदि हम एक पाप मुक्त, अपराध मुक्त समाज देखना चाहते हैं, तो लोगों को परमेश्वर से डरना चाहिए, जो कि सुसमाचार प्रचार से शुरू होता है। Only God can transform a person who is crooked and sinful. A true Christians foremost workers to reach out to the unreached to proclaim this good news. But sadly, even after salvation, baptizing with the Holy Spirit, people remain idle without carrying out God's work. A truly spirit-filled person will continuously do God's work. You can read in the scripture about Samson that the Spirit of the Lord began to stir him. Nowhere you can study about God's people sitting idle after receiving the Spirit. कुटिल और पापी व्यक्ति को केवल भगवान ही बदल सकते हैं। एक सच्चे मसीही का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि इस सुसमाचार का प्रचार करने के लिए अपंगों तक पहुंचे। लेकिन दुख की बात है कि उद्धार के बाद भी, आत्मा से बपतिस्मा लेने के बाद भी, लोग परमेश्वर के कार्य को पूरा किए बिना बेकार रहते हैं। वास्तव में आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति निरंतर परमेश्वर का कार्य करेगा। आप पवित्र शास्त्र में शिमशोन के बारे में पढ़ सकते हैं कि यहोवा का आत्मा उसे हिलाने लगा। कहीं भी आप आत्मा को प्राप्त करने के बाद बेकार बैठे परमेश्वर के लोगों के बारे में अध्ययन नहीं कर सकते। But see today's Christians, they join the church, regularly attending Sunday services, give offerings and take part in special meetings. That's all in their life. Until they'll go to graveyard, they'll continue doing this, thinking that they'll reach heaven. Sadly, it is not in that way. Just because you became a member in a church and giving tithe is not the criteria for reaching heaven. लेकिन आज के ईसाइयों को देखें, वे एक चर्च में शामिल हुए, नियमित रूप से रविवार की सेवाओं में भाग लेते हैं, प्रसाद देते हैं और विशेष बैठकों में भाग लेते हैं जो उनके जीवन में सब कुछ है। जब तक कब्रिस्तान नहीं जाते तब तक यही सोचते रहते हैं कि स्वर्ग में पहुंचेंगे। नहीं, इस तरह से यह वादा नहीं किया गया है। सिर्फ इसलिए कि आप चर्च में सदस्य बन गए और दशमांश देना स्वर्ग में प्रवेश करने का मानदंड नहीं है। When we complete our work and go, our master must say, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness." Such people are eligible to enter into heaven. Because in the following verse you can see a man who was thrown in darkness just because he hasn't utilized his time, possession and talents to improve God's kingdom. See how the master addressed him, wicked, lazy and worthless servant. जब हम अपना काम पूरा करते हैं और जाते हैं तो हमारे मालिक को कहना चाहिए, अच्छा किया, अच्छा और वफादार सेवक। आप कुछ चीजों के साथ वफादार रहे हैं, मैं आपको कई चीजों का प्रभारी बनाऊंगा। आओ और अपने मालिक की खुशी साझा करें। ऐसे लोग पात्र हैं स्वर्ग के लिए, क्योंकि निम्नलिखित श्लोक में आप देख सकते हैं कि एक आदमी को अंधेरे में फेंक दिया गया था, क्योंकि उसने अपनी प्रतिभा, समय और संपत्ति का उपयोग भगवान के राज्य को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए नहीं किया था। देखें कि गुरु ने उसे कैसे संबोधित किया, दुष्ट, आलसी और बेकार नौकर। Who is the wicked servant? The one who is having all the facilities given by God, yet didn't use it properly. God has given you a healthy body. Serve God without complaining that you don't have a car or bike to ride. God has blessed you with long life. Many of your aged people have died, but you are still alive. So praise God and continue working for Him. God has gifted you a good family. Thank God because many people are from broken families. Count your blessings
and see how can you be useful to God. जो दुष्ट सेवक है, जिसके पास ईश्वर द्वारा दी गई सुविधाएं हैं, फिर भी उसका ठीक से उपयोग नहीं किया। ईश्वर ने आपको स्वस्थ शरीर दिया है। बिना यह शिकायत किए भगवान की सेवा करें कि आपके पास सवारी करने के लिए कार या बाइक नहीं है। भगवान ने आपको लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया है। आपके कई वृद्ध लोग मर चुके हैं, आप अभी भी जीवित हैं। इसलिए परमेश्वर की स्तुति करें और उसके लिए कार्य करना जारी रखें। भगवान ने आपको एक भगवान परिवार का उपहार दिया है। भगवान का शुक्र है क्योंकि बहुत से लोग टूटे हुए परिवारों से हैं। अपने आशीर्वादों को गिने और देखें कि आप भगवान के लिए कैसे उपयोगी हो सकते हैं। Who is the lazy servant? The one who has everything at hand but yet doesn't have a heart to work. The one who has wasted all his time in vain. Bible shows a character, and then was a widow until she was 84. She never left the temple but worshipped night and day, fasting and praying. Prophetess Anna in her old age was not lazy but utilized her time and full strength in a God's favored way. तो आलसी सेवक है, जिसके हाथ में सब कुछ है फिर भी उसके पास काम करने का मन नहीं है, जिसने अपना सारा समय व्यर्थ गंवाया है। बाइबल एक चरित्र को दिखाती है और तब तक वह 84 वर्ष की होने तक विधवा थी। उसने कभी मंदिर नहीं छोड़ा बल्कि रात दिन पूजा की, उपवास और प्रार्थना की। भविष्यवक्ता अन्ना अपने पुराने समय में आलसी नहीं थी, लेकिन अपने समय और शक्ति का उपयोग भगवान के पसंदीदा तरीके से करती थी। Who is the worthless servant? The one who has wasted all his time, strength and everything in unwanted works. God entrusted us and gave so many facilities thinking that we will help expanding his kingdom. Instead doing that, if we sit and waste all the talent, money, possession and time, God will definitely throw us into that dark hell and will call us worthless. जो निकम्मा सेवक है, जिसने अपनी काबिलियत और ताकत को बेकार के कामों में बर्बाद कर दिया। भगवान ने हमें सौंपा और कई सुविधाएं दी, यह सोचकर कि हम उसके राज्य का विस्तार करने में मदद करेंगे। ऐसा करने के बजाय यदि हम बैठकर उस प्रतिभा, धन, संपत्ति और समय को बर्बाद करते हैं, तो भगवान हमें उस अंधेरे नरक में फेंक देंगे, हमें बेकार कहेंगे। It doesn't mean that everyone should cling to church activities, fasting and praying. God has a special purpose in everybody's life. Fulfilling God's wish must be our life motto. The scripture says, when David had served God's purpose in his own generation, he fell asleep. David died after he served God's purpose. So we also must do that. We know one day everyone must leave this world. But when we go, our master should say, well done, good and faithful servant. To earn a name like that, we must serve God's purpose in our life. Be watchful that we should not be a wicked, lazy and worthless servant. Let God guide us to serve His purpose and will in our life. May God bless you till we meet again. इसका मतलब यह नहीं है कि हर किसी को चर्च की गतिविधियों, उपवास और प्रार्थना से चिपके रहना चाहिए। हर किसी के जीवन में भगवान का एक विशेष उद्देश्य होता है। भगवान की इच्छा को पूरा करना हमारे जीवन का आदर्श वाक्य होना चाहिए। पवित्र शास्त्र कहता है, जब डेविड ने परमेश्वर के उद्देश्य की सेवा की थी तो उसकी अपनी पीढ़ी थी, वह सो गया। दाऊद की मृत्यु तब हुई जब उसने परमेश्वर का उद्देश्य पूरा किया। इसलिए हम जानते हैं कि एक दिन सभी को इस दुनिया को छोड़ना होगा, लेकिन जब हम जाते हैं तो हमारे स्वामी को हमें स्वागत, अच्छा और विश्वासयोग्य दास कहना चाहिए। ऐसा नाम कमाने के लिए हमें अपने जीवन में भगवान के उद्देश्य की सेवा करनी चाहिए। सावधान रहें और हम एक दुष्ट, आलसी और बेकार सेवक न बने। ईश्वर हमें अपने जीवन में उसकी इच्छा की सेवा करने के लिए मार्गदर्शन करें। भगवान आपको तब तक आशीर्वाद दे जब तक हम फिर से न मिलें।